जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान. After a break of 2 weeks, we are back. So, and we are currently at chapter 3, which is कर्म योग, है ना. तो हम लोग कर्म योग सीख रहे हैं कृष्ण से. और कृष्ण, श्री कृष्ण किसको सिखा रहे हैं? He is teaching कर्म योग to Arjun. Why Karma Yoga is important? Because Arjun is a Kshatriya. He has duties to fulfill, and somehow he feels that not doing anything is a sign of enlightenment. Okay, I don't want anything, I don't want to do anything, I just want to go. I don't even want to fight for the villages. कुछ नहीं चाहिए मुझे. But Sri Krishna says that is something which a Bhiru will do. What is Bhiru? A coward. And so far, we have completed till verse 17 based on our understanding, right? So far, Sri Krishna has told us, he says, wherever you are placed, जिस हाल में, जिस स्थिति में, जिस जगह पे, जिस सिचुएशन में, जैसी भी परिस्थिति हो, आपको रखा गया है, आप वहां रहिए और अपना कार्य सिद्ध करिए, अपना कार्य करिए, राइट? बी इट इन विच धर्म, जाति, रिलेशन, सिचुएशन, बी प्रोडक्टिव, राइट? कर्म से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा, ये हमें समझ आ गया. Because we understood, just as a small recap, श्वास लेना, when we are breathing, that is also कर्म, right? बैठना, that is also कर्म. चलना, that is also कर्म, right? So कर्म करने से हमें छुटकारा नहीं मिल सकता. Now, what we were addressing last week is, तो फिर there is nobody who can be free from karma. Everybody has to work. Everybody has to continue doing. Then Shri Krishna said, no. ऐसी परिस्थिति होती है, there is a state when you are in the Turiya avastha, when you are in the Gunatit avastha, right? When you are totally sthit in Satchit Anand Swarup, that I am the Atman, the knowledge that I am the Brahman, the realization that I am the ocean and not the wave. Or we can say I am the ocean and the wave, right? When that realization has been internalized totally, then there is no karma, there is no akarma. And very few, करोड़ों अरबों में से कोई एक स्थिति में पहुंचता है. Hardly few reach this state of being sthit in their Satchit Anand Swarup. And when a person is sthit in that Satchit Anand Swarup, where it is not only a knowledge कि हाँ, not only ये bookish knowledge या किसी ने बता दिया तो हमें पता है या हमें शायद एहसास हो रहा है, नहीं. Where there is no oscillation anymore, रजस तमस सत्व में जो हमारा oscillation होता है ना, वो नहीं है. There is no rajas, no sattva, no tamas anymore. We are beyond that. When there is no dream state, waking state, deep sleep state, we are beyond that. These two verses, verse 17 and 18, are talking about that divine individual. वो एक, कहते हैं ना, वो एक अनोखा जीवन मुक्त इंसान. He can be free from doing anything. And it's okay. One thing that we should remember is the life of these kind of people is an example for us, right?
जो जीवन मुक्त होते हैं उनके लिए सहज हो जाता है सब. इट बिकम्स वेरी इजी. इट इज एफर्टलेस टोटली. साधना कब तक करनी है? जब तक एफर्ट लग रहा है तब तक आप करते रहिए. एक समय आएगा व्हेन इट बिकम्स एफर्टलेस, राइट? दे आर इन दैट स्टेट ऑफ सहज अवस्था, effortless state. When they are sthit in that Satchit Anand Swarup, they become that Satchit Anand Swarup. For them, karm akarm does not apply. So verse 17 and verse 18 of Gita are talking about that person who is in the state of Satchit Anand Swarup, वो जीवन मुक्त. और हमें पता है ना, जीवन मुक्ति मरने के बाद नहीं होती, जीते जी हो जाती है, राइट? और अगर वी आर नॉट जीवन मुक्त, वी आर नॉट लिबरेटेड, वी डू नॉट गेट लिबरेशन, वी डू नॉट बिकम established in our Satchidanand Swarup while we are alive, after that what happens? Rebirth happens. The cycle of birth and death does not end. So मृत्यु के बाद क्या है? पुनर्जन्म है. मुक्ति कब होती है? जीते जी हो जाती है. So they are talking about these people जो जीते जी मुक्त है. And there was a beautiful share before we go into the verse. 17 we'll take briefly, 18 and 19 we'll go in depth because 17 we have already covered. Before we go into these three verses, verse 17, verse 18 and verse 19 of Srimad Bhagavad Gita, there was a beautiful share. Kasturi is in the class, she had shared it with me. This is something that we need to bring to our notice, that karma is not a punishment as it is written over here. कई बार होता है, and that is true. तुम्हें कर्म का फल मिलेगा, है ना? तुम ऐसे करोगे तो तुम ही भोगोगे. We have heard so much ना, ये मेरे कर्मों का ही फल होगा, राइट? कुकर्म करे होंगे हमने. कई बार it comes out of our mouth very without thinking, right? And then we become scared of karma. So before we move on, now that this knowledge has come to us, let's share it. And they say that karma has never been a threat, right? It is just a teaching. We are all journeying towards the divine, right? So we are learning as we move on, and karma should not be feared, right? कर्म क्या है? एक्शन है, और जो हम करेंगे उसका हमें कॉन्सिक्वेंस मिलेगा, राइट? सो इट इज नॉट देयर टू पनिश अस. एज वी लर्न, वी गिव अ टेस्ट, राइट? हमने कुछ सीखा, सपोज हमने मैथ की प्रैक्टिस की, एंड देन वी गिव अ टेस्ट, राइट? एंड इन द टेस्ट देन वी रियलाइज कि ओ माई गॉड, आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस आई कुड नॉट अटेम्प्ट. समझ ही नहीं आया. देन वी गो बैक and figure out कि क्या गलती हो गई थी, right? And then we come back and we try to, work harder, again attempt different questions, and this time the result is a little better. फिर वापस हम और मेहनत करते हैं, समझते हैं, और धीरे 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 करके एक ऐसे स्टेट पे पहुंच जाते हैं कि अब गलतियां नहीं हो रही हैं. एक होता है ना silly mistakes in mathematics, we happens, right? कि silly mistakes नहीं हो रही because we are totally in awareness. मल्टीप्लीकेशन डिविजन में एरर्स नहीं हो रहे बिकॉज देर इज नो लैप्स इन आवर फोकस, एंड देन दोज मेजर कॉन्सेप्ट्स आर ऑल्सो क्लियर. सो नाउ द मेजर प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो सॉल्वेबल. उनको भी हम कर पा रहे हैं, राइट? एंड द टेस्ट वॉज जस्ट टू टेल अस वेयर वी स्टैंड. सो कर्म को भी शायद हमें ऐसे ही लेना चाहिए. ये एक टेस्ट है, हमारे को इस दुनिया में भेजा, राइट? हम पढ़ लिख के आए, हमें भेजा कि चलो ट्राई, implement it, let's see whether it is working for you or not. And through our journey, हम लोग कहीं गलती करते हैं, कहीं समझ जाते हैं, कहीं होता है, कहीं नहीं होता, कहीं सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. And then next birth again, we are again put into a situation. So every situation that is coming towards us, be it good or bad in our words, because situation is situation, it is neither good nor bad. It is just for us to learn and evolve. Learn and evolve. Learn and evolve. So it is not a punishment. It is just a test. Right? तो इसी के लिए कहते हैं ना कि डरिए मत कर्म से. कर्म फल से भी मत डरिए.
देयर इज नोबडी, प्रभु को हमारे से कोई एनिमिटी नहीं है कि वो हमें पनिश करेगा। उनको क्या मिलेगा हमारे को दंड देके? हमारे को कोई दंड नहीं दे रहा, हमारे लिए कोई कुछ लिख नहीं रहा है कि somebody has written my destiny. No, I am the master of my own destiny. आज जो मैं करूंगी, as I sow, so shall I reap. Right? आम बोए हैं, आम की गुठली बोई है तो आम मिलेगा। करेले की गुठली मिली बोई है, करेले की बीज बोए हैं तो बिटर करेला मिलेगा। राइट? सो कर्म से डरिए मत। एंड व्हाट डू वी डू देन राइट नाउ? With the help of so much of knowledge that the Lord has left for us, we can fix how we act in this world. That's it. And we have to be conscious all the time. ऐसा नहीं कि without thinking we are acting. बिना सोचे समझे तो हमें श्वास भी नहीं लेनी चाहिए. We have to focus on our breath also. We have to focus on our words. We have to focus on our action. We should be alert. Why? Because what I do today, I shall reap tomorrow. इतनी तो अब समझ हमें आ ही गई होगी ना। तो from this point onwards, maybe we can say that this is not a punishment, this is a test. Right? This is what I had learned and now I had learned and now I'm going to implement in my life. Very simple. So, कर्म से हमें डरना नहीं है, कर्म से हमें बचना नहीं है कि हम बच के भाग जाएं कर्म से. इट इज नॉट पॉसिबल. वॉट आर वी ट्राइंग टू डू इज हमें कर्म करना सीखना है. एंड दीज महापुरुष विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन वर्स नंबर 17 and 18, they are also acting. वो भी कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं. राइट? दे आर ऑल्सो कंटिन्यूसली एक्टिंग. पर वो स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं. द डिफरेंस इज दे आर नॉट वर्किंग फॉर सेल्फिश रीजन्स. दे आर नॉट वर्किंग टू गेट रिकग्नाइज्ड. दे आर वर्किंग सेल्फलेसली. कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं बदलेगा. एज वी कीप सेइंग, हमारा सोच बदलेगा, हमारी एक्सपेक्टेशंस बदलेंगी, सिचुएशन नहीं बदलेगी. हमारी सिचुएशन के तरफ जो प्रतिक्रिया है, हाउ वी एक्ट टुवर्ड्स अ सिचुएशन, हाउ वी रिएक्ट टुवर्ड्स अ सिचुएशन इज गोइंग टू चेंज. दैट्स ऑल. सो नाउ लेट्स क्विकली एंटर वर्स नंबर 17. थोड़ा सा वी विल जस्ट ओपन द चैप्टर. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. श्री भगवानुवाच. And over here, verse number 17. परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है. And this is so beautiful. What are they saying over here in verse number 17 is that person who is contented in himself, who he's not needy, he does not need anything to complete him. देखिए, we had discussed last class, Preeti, right? That desire, that love, that I want from something. Trishna, right? That want, Preeti, that love for something. Trishna, the wanting for something. There is nothing in this person. He is complete in himself. There is no longing ki I should get something from somebody. I should get appreciation from somebody. So, परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला है, full, complete, always, inwardly looking, मतलब what we are seeking is we are seeking from everything else outside. But this person whom they are talking about right now is not a seeker. He does not want from anything outside. है ना?
और अपने आप में ही तृप्त है, satisfied, totally satisfied. It does not, a particular thing does not make him satisfied. And अपने आप ही संतुष्ट है, contented. उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता. There is no duty for this person. Particular duty जो होती है ना, duty of any form does not apply to this person. And for this kind of a state, we have to be honest to ourselves. Are we in this state? Where whether we get appreciation or somebody rebukes us, we are sthit. There is no change in our, there is no internal change or turmoil in us. होता है ना जब when there is a machine that goes up and down, up and down, up and down, up and down, and there is a lie detector test also. They can see the change in your pulse and figure out whether आप सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं. इसमें आप सोचिए, अपने आप को रखिए, because this is not a teaching or a study about somebody else. We are studying about ourselves. कि are we there in that state where we are contented all in ourselves? We make something, we toil for the entire day, put food on the table, whether somebody eats it or not, appreciates or not, or maybe somebody says that is horrible, what have you made? What is the inner barometer? ऊपर नीचे जाता है, क्या होता है, क्या reaction है हमारे अंदर? Maybe we won't say anything at that time to that person. But internally, what is the feeling? कहते हैं ना, आपको अंदर से क्या आभास हो रहा है? And most of us will realize that we are not sthit. We are not just being. We are trying probably, but we are not there yet. Right? So, in this they say, तात्पर्य यही है कि संसार में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि कभी स्थायी नहीं रह सकती. When we seek from outside, there will be variation always, right? Because the outside world is always changing. In the same way, when we don't seek from anything, कि हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए. मैंने मेरे बच्चों को इतना प्यार से बड़ा करा, कितनी सैक्रिफाइस की, अब वो मेरे लिए क्या कर रहे हैं? आता ही है ना, एक मां के मन में भी ये ख्याल आ जाता है. तो फिर जब तक ये ख्याल है तब तक हम स्थित नहीं है. एंड व्हेन द स्थिति अराइजेस, देन देयर इज नो ड्यूटी दैट अप्लाइज टू अस. वो जीवन मुक्ता देखते हैं ना, जीवन मुक्त, कोई भी घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया. द लॉज ऑफ द नेचर डोंट अप्लाई टू दिस काइंड ऑफ अ पर्सन. एंड उनकी क्या होती है? In spite of this, these people are in an avastha which is nishkam. They don't want anything from anybody, but due to their composition, they are working for the betterment of the society. Right? हम कुछ पाने के लिए कुछ नहीं कर रहे. The social work is not to get recognition. It is because compassion. They see that same divine in everybody. एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल अभी हम बाद में देखेंगे, where he says, when our hands wash our face, do we expect कि the face should say thank you to our hands? नहीं ना. हाथ से मुंह धोया, मेरा ही मुंह है, मेरा ही हाथ है, धो लिया तो क्या हुआ? This is how they start operating in this world. And when this person, when this state has come, no duty applies to them. And before we go to the next verse, परंतु जब वह अपने लिए कुछ भी ना करके दूसरों के लिए, अर्थात शरीर, इंद्रियां, देखिए इसमें when we are going through our Gita, we have to realize that whenever we are talking about par, दूसरा, right? The duty does not apply to them. Whenever they are talking about par, राम सुखदास जी हमेशा पर में किसको ले लेते हैं? Our body is दूसरा, इंद्रियां दूसरा, मेरे नेत्र दूसरा, मेरे सोच दूसरा, पर है, ये सब पर है. So what is me? I am that सच्चिदानंद स्वरूप. वो रियलाइजेशन डॉन हुआ है या नहीं हुआ है, I don't know how long it will take for us, but I am that सच्चिदानंद स्वरूप. Anything beyond that सच्चित आनंद स्वरूप, be it the body, mind, thought, words, is not me. वो पर है. So जैसे ही the body is not mine, everything else related to the body is not mine, be it my children, my husband,
my mother-in-law, my father-in-law, or my parents, my sister, कुछ भी मेरा नहीं है. And then whatever is there other than this, these are relationships. But the things that are there, like the table, the chair, the house, that is also not mine. So this person, when he is working in this world, he is working for others. And when you're working for your body also, that realization is there that I am not the body. अब मैं सुबह उठ के खा रही हूं, कर रही हूं, तो आई एम टेकिंग केयर ऑफ दिस बॉडी. ये यंत्र मिला है मुझे, मनुष्य शरीर मिला है, तो इसका मैं ख्याल रख रही हूं. ही इज ऑलवेज देयर, स्थित इन दिस अवस्था. इट मस्ट बी सो. वी डोंट से ना कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. नो, आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस बॉडी. ये शरीर चलेगा तो आई विल बी एबल टू वर्क इन दिस वर्ल्ड. आई विल बी एबल टू क्रॉस द ओशन ऑफ मंडेन एग्जिस्टेंस, बिकॉज यही एक इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास में. दिस बॉडी ऑल्सो बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट टू दिस पर्सन. And then they start working for the betterment of everybody. But they are not bound. Even if they don't do all this, they are not compelled to do karma. Because जब वो श्वास भी ले रहे हैं तो उनको एहसास है कि ये शरीर श्वास ले रहा है, मैं श्वास नहीं ले रहा हूं. मैं कौन? मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं. बहुत मुश्किल है पर संभव है. राइट? सो कर्म तब होता है जब कुछ ना कुछ पाने की कामना होती है. When is karma? Why is he free of duty? Because there is no karma for him. When he does not want anything from his own body also, then where is karma? So there is no desire to get anything. So there is no karma. And और कामना पैदा होती है कब? अभाव से. When do we have desires? When we are lacking something. There was a very beautiful reel that I was watching yesterday. It was on the Minimalist channel, I think. And it was like, what are we? What is our journey from? When we do not have something, we yearn for it, right? I want this model of an iPhone or something and something and something. And then once we get it, it is like, oh, okay, right? Now we want something else. So it is not that even this thing is not giving us joy. It is the journey to get that thing, to have it. So जो joy comes from मुझे वो चाहिए, और जब वो मिल जाएगा तब वो joy. And the way he was acting it out was so beautiful. I want it. And then, okay. That yearning. And then after that, जब वो चीज बाई चांस हमने मिसप्लेस कर दी, oh my god, I can't find my phone. Oh my god, I can't find my phone. Where is my phone? तब उसकी वैल्यू होती है वापस जब वो चीज चली जाती है. Right? So again we are looking for it. And then we get it. We are so happy and then, okay. So this is this cycle. The trap is हमें बस have it. This is like a addiction of having. We want something or the other to work towards. और जो चीज हमारे हाथ में होती है उसको हम वैल्यू ही नहीं करते. तो अभाव, when we feel we don't have something, we are yearning for it. When we have it, we don't want it anymore. Right? It is not that important anymore. मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, हम इतनी मेहनत करेंगे और जब मिल जाएगा तब ठीक है. What next? What next? अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? पूरी जिंदगी निकल जाती है इस दौड़ में. So over here, they are saying this kind of abhav is not there in this person because he is complete. Right? He is always complete. स्थित है. मतलब what can you give to a सच्चिदानंद स्वरूप and what can you take from it? कुछ भी नहीं. सिद्ध महापुरुष कोई अभाव ही नहीं होता. है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, किसी ने हाथ जोड़ दिया तो ठीक, नहीं जोड़ा तो ठीक. फिर उनके लिए करना कैसा? Then what is doing for them? So this kind of a person is free from action, Shri Krishna says, right? And then he goes on to the next verse. He said, Neva tasya kritenartha. What is he saying? Verse number 18. उस कर्म योगी से सिद्ध हुए का इस संसार में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन है और ना कर्म ना करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता.
Now what is he saying? Neva tasya kritenartho nakritena kaschanah. Matlab, what is he saying? When he is doing something, right? Very simply, अपने लिए कुछ ना कुछ पाने की इच्छा ही मनुष्य को बांधती है, right? Now, again, we'll elaborate this. What ties us? What is foundation and what is liberation? When we want something for us, it is foundation. It binds us. When we don't want anything, in the sense, बहुत सिंपल सी चीज है ना, हमने देखा होगा भक्तों में ना, उनको भगवान भी नहीं चाहिए होते. They are so happy praying to the Lord. They are so happy in this journey. बोले आप ये क्यों कर रहे हैं? They will say, बस कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं. You want मुक्ति? You want स्वर्ग? You want God? बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ है ही नहीं जो चाहिए. सब कुछ तो है, right? There is no destination anywhere कि मुझे वहां पहुंचना है, इसके लिए मैं चल रहा हूं. That is why I am walking. So over here they are saying, उस कर्म योगी से सिद्ध हुए महापुरुष का, like that महापुरुष का इस संसार में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन है. प्रयोजन का होता है what is, कोई इंटेंशन होता है ना, what if I do something, why am I doing it? कोई कारण नहीं है. कोई बोलता है ना, why do you get up in the morning? उठ जाते हैं. Why are you doing गीता? कर लेते हैं. There is no, I am doing this to get this. I am doing this for this. चैरिटी क्यों कर रहे हो? ताकि पुण्य मिले, फिर स्वर्ग मिले, या फिर रिकग्निशन मिले. आजकल तो लोग टॉम टॉम भी करते हैं ना, यू डू समथिंग एंड यू फ्लॉन्ट इट एंड यू गेट रिकग्निशन. दैट प्रयोजन नहीं है, क्यों कर रहे हो? नो रीजन. जैसे होता है ना, दोस्ती वो होती है जहां कोई प्रयोजन ना हो, और जहां कोई प्रयोजन होता है ना, देयर इज अ रीजन, देयर इज नो फ्रेंडशिप. कृष्ण और सुदामा की दोस्ती ऐसी थी ना, देयर वाज नो रीजन. दोस्त है, क्यों दोस्ती? जहां पे क्यों का जवाब मिलेगा वहां दोस्ती नहीं रहेगी, राइट? सो इन द सेम वे, एंड इफ आई डोंट डू एनीथिंग नाउ, फॉर अ नॉर्मल पर्सन, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम सिटिंग इन मेडिटेशन बिकॉज आई वॉन्ट पीस. आपका प्रयोजन है. ही इज सिटिंग, ही इज जस्ट सिटिंग. एंड क्यों आप बैठे हैं? आप, व्हाई आर यू सिटिंग? बस. देयर इज नो रीजन फॉर सिटिंग इन मेडिटेशन ऑल्सो. When there is no reason, प्रयोजन ही नहीं है, उसके ऊपर कर्म का सिद्धांत अप्लाई नहीं करता. जब तक दिस प्रयोजन इज देयर, आई एम डूइंग दिस बिकॉज, सो देन वी आर स्टिल बाउंड. वी आर नॉट अ जीवन मुक्ता. देखिए कई बार ना हम अपने आप को झूठ बोलने लग जाते हैं. हर चीज करने के पीछे एक प्रयोजन होता है हमारा, चाहे वो मेंटल पीस ही क्यों ना हो, चाहे वो आई वॉन्ट टू डू गुड ही क्यों ना हो. वॉट इज गुड, वॉट इज बैड, राइट? फॉर हिम देर इज नो प्रयोजन, एंड फॉर हिम द कर्म फिलोसफी डज नॉट अप्लाई. एंड देन यू नो व्हाट हैपेंस इज, इन स्पाइट ऑफ दिस, वेयर देर इज नो रीजन, देर इज नो रीजन फॉर हिम टू गेट अप. अब कई बार होता है ना कि खाया तो खाया, देर आर सो मेनी भिक्षुक्स हु गो अराउंड. Their rule is, we'll go to one house, जो मिलेगा वो खा लेंगे, नहीं मिला तो नहीं खाएंगे. Because कहीं ना कहीं ठीक है, खाना है, शरीर को चलाना है, पर अगर शरीर नहीं भी चले तो क्या? एक स्टेट है वो. That is a different state, and there are yogis in that state. There are people in that state. They must be amongst us. We cannot find out. Where there is no reason left. But does it make them inert? हमें लगता है ना, जब कोई रीजन ही नहीं रहेगा कि मुझे सुबह उठना है, मुझे मेरे बच्चों के लिए करना है, या मुझे इसके लिए जीना है, तो फिर हम इनर्ट ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, पत्थर हो जाएंगे. नहीं. When there is no reason, there is no disappointment. When there is no expectation, there is no heartbreak. And just imagine how powerful a person becomes when they operate like this. किसी कारण के बिना कार्य करना एक सदगुरु, एक महागुरु की पहचान है. एंड व्हाट दे डू इज, अपने लिए कुछ ना कुछ पाने की इच्छा ही मनुष्य को बांधती है. दैट इज व्हाट वी आर करना. उस इच्छा की निवृत्ति के लिए कर्तव्य कर्म करने की
आवश्यकता है. नाउ टू गेट रिड ऑफ दिस वी हैव टू डू आवर कर्तव्य कर्म बिकॉज वी आर बाउंड, राइट. एंड उसके द्वारा उस भाव से, राइट, समस्त सृष्टि के हित के लिए स्वतः कर्तव्य कर्म होते हैं. सी, टिल यू आर बाउंड, ओके, यू आर डूइंग वर्क, राइट. कर्तव्य कर्म आप कर रहे हैं बिकॉज वी आर बाउंड, बिकॉज कुछ ना कुछ पाने की इच्छा है. बट नाउ हाउ डू वी बिकम लिबरेटेड? व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग विदाउट एनी desire, right? That is the only way. Work, we have to work because we are still bound. We are not that Mahapurush. And how do we get free from this? When we start working for the betterment of, and we are start doing selfless action. Not for kamna purti, but kamna nivritti के लिए. You know, these are two. एक तो होता है कामना पूर्ति के लिए काम करना, to fulfill our desires. एक होता है कामना निवृत्ति के लिए कर्म करना. So to move from the state of being bound to the state of being free, कामना पूर्ति के जगह उसको शिफ्ट करते रहना है हमें टू कामना निवृत्ति, राइट. इट इज नॉट इजी, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट दीज महापुरुष who start working like this are free. For them the कर्म philosophy does not apply. For them any philosophy that we are reading right now would not apply because they are beyond this world, beyond this creation. Is it possible to rise above? It is. For them, they work fine, they do not work fine, they sit fine, they do not sit fine, they meditate fine, they do not meditate fine. It does not matter. Because the rules of creation do not apply to them. And क्या है, मनुष्य की यही गलती होती है कि वह अपने लिए, राइट, अपने योग करना चाहता है, राइट, समस्त सृष्टि को अपने लिए उपयोग करना चाहता है, एंड इससे उसे अशांति होती है. नाउ दिस पर्सन इज वेरी काम बिकॉज ही इज नॉट ट्राइंग टू यूज एवरीथिंग फॉर हिज ओन बेनिफिट. बिकॉज क्या है, वी क्लियर्ड इट, राइट, देयर इज नो प्रायोजन, देयर इज नो रीजन, देयर इज नो because I want to get this. कुछ नहीं है. And when we feel कि no, we have to use this for our benefit, then we get bound again. This person is free. जिसका कर्म करने से प्रयोजन रहता है, उससे आदर्श कर्म नहीं होते. यह सिद्धांत है. And this is like a wow factor over here. I've written wow when I'm reading this. He says, till there is a prayojan, till there is something that we want to get, we might think we are doing adarsh karma. Adarsh karma, superior action, selfless action. It is not. बोले मुझे क्या मिलना है? If I'm, you know, sometimes we say ना, there is a saying, help people who cannot repay you ever. And then we say, oh, ये तो आदर्श कर्म है ना, मुझे उससे क्या मिलेगा? कैसे नहीं मिला आपको? आपके भाव भी आया कि आपने कुछ करा उसके लिए, आपको संतुष्टि मिली, सेटिस्फैक्शन मिला, मेरे पास है तो मैं दे रहा हूं. एक प्रायोजन तो है ही आपका फिर भी. एंड दैट नॉलेज है आप में, आपने अपने मन में ये सेट कर लिया है कि आई डिड समथिंग फॉर समबडी, यू कैन नेवर डू एनीथिंग फॉर मी. हाउ डू यू नो? हाउ डू वी नो दैट वी आर डूइंग समथिंग फॉर समबडी हु कैन नेवर डू एनीथिंग फॉर मी? मे बी पूर्व जन्म में उसने हमारे लिए इतना कुछ करके रखा होगा, या फिर मे बी टुडे व्हेन आई हेल्प हिम, आई डू नॉट नो कौन सा मेरा पाप कट रहा है. सो जहां, इसी के लिए कहते हैं जिसका कर्म करने में प्रयोजन है, दिस इज लाइक अ थिंग दैट वी शुड रिमेंबर, दैट पर्सन होम द कर्म फिलोसफी डज नॉट अप्लाई टू, डज नॉट, एंड प्रयोजन का एक्चुअल ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मुश्किल है. उसका कोई प्रयोजन नहीं है. जब तक हमारा प्रयोजन है, हमारे से आदर्श कर्म नहीं होंगे. इवन इफ वी फील वी आर डूइंग गुड वर्क, इट इज नॉट. Even if we feel it is selfless action, it is not. Till there is a prayojan, till there is a reason, there is no adarsh karma happening. And for a person like that, we have to be very alert, we have to be very vigilant, we have to try to become selfless. Right? So, this is very beautiful. Shri Krishna ne bola hai, haan, Arjun, if you come in these categories,
then you fight the battle, you do not fight the battle, does not matter. But if you are in these two categories, now again Shri Krishna ऐसे ही तो कुछ बोलते नहीं है, you will still stand and fight. अगर आपका कोई प्रयोजन नहीं है, and if you are already स्थित in that state, you will stand and fight, अर्जुन. तुम ऐसे जाने वाले नहीं हो. क्यों? बिकॉज अभी तो तुम बोल रहे हो ना, मुझे गांव नहीं चाहिए, आई डो नॉट वॉन्ट जस्टिस, आई डो नॉट वॉन्ट दिस, आई फॉरगिव, आई कैन नॉट. नो, नाउ यू आर वर्किंग टुवर्ड्स अ ग्रेटर गुड. धर्म अधर्म की लड़ाई है. आपको लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए विदाउट एनी प्रयोजन. हित मिले अनहित मिले डज नॉट मैटर. फॉर दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू शाई अवे फ्रॉम एनी वर्क. दैट इज द थिंग. एंड फॉर हिम देर आर टू वर्ड्स, ओके, प्रवृत्ति एंड निवृत्ति. प्रवृत्ति क्या होती है? ऑल दिस एक्शन अराउंड अस, राइट, जो भी हम सब कर रहे हैं. एंड निवृत्ति क्या होती है? उसके लिए प्रवृत्ति में निवृत्ति है और निवृत्ति में प्रवृत्ति है. लेट्स जस्ट रीड इट ओवर हियर. यह बात श्रेष्ठ और लाभप्रद तो है, पर सिद्धांत नहीं है. यद्यपि प्रवृत्ति करना, प्रवृत्ति इज डूइंग, करना की अपेक्षा निवृत्ति, नॉट डूइंग, श्रेष्ठ है, तथापि ये तत्व नहीं है. वी माइट से, राइट, कि फिर भी कहते हैं ना प्रवृत्ति निवृत्ति. व्हेन यू आर एक्टिंग, राज से ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है, बट देन यू से कि इससे अच्छा तो ना करना है. बोला नहीं, प्रवृत्ति और निवृत्ति को आप ऐसे नहीं मान सकते कि करने से अच्छा ना करना है, ना करने से अच्छा करना है. नहीं. Again, it is so beautiful. It is that sukshma thing that is behind it that matters. It is not doing or not doing. It is not karna or na karna. It is the bhav. It is that inner composition that matters. Isikliye don't be so fast in judging what is happening outside, because हमें किसी का inner composition नहीं पता है. A person who might be seemingly doing amazing work in the society might have such a big prayojan in his heart. And a person who might be seemingly doing nothing might have no prayojan. कौन श्रेष्ठ है? इसी के लिए कहते हैं ना, let's work on ourselves. दूसरों को छोड़ देते हैं. हमें खुद का ही कई बार नहीं पता चलता कि प्रयोजन है या नहीं है. And then he says, जिसका प्रकृति एवं उसके कार्य से भौतिक तथा आध्यात्मिक और लौकिक तथा परलौकिक कोई प्रयोजन नहीं रहता, उस महापुरुष का करने एवं ना करने से कोई स्वार्थ नहीं रहता. नाउ व्हाट आर दे सेइंग? इट्स ब्यूटिफुल, इट्स रेनिंग टुडे. जिसका प्रकृति एवं उसके कार्य से, ये प्रकृति है ना, प्रपंच है ना, एवरीथिंग दैट वी सी इज प्रकृति, राइट? प्रकृति और उसके कार्य से, वट एवर इज, एंड उसके कार्य से कोई प्रयोजन नहीं रहता. मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, नथिंग, राइट? अथवा लौकिक तथा परलौकिक. एंड दिस इज ब्यूटिफुल. लौकिक इज दिस संसार. हमें कहते हैं ना, संसार से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है. परलौकिक, उसके बियॉन्ड जो है, उससे भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है, राइट? मतलब this is a state of purely being. And just talking about this state, doesn't it give so much of शांति? कि ऐसी भी एक अवस्था हो सकती है जहां किसी चीज से, किसी स्थिति से, मतलब किसी से भी कोई प्रयोजन नहीं है. एंड कितनी शांति मिलेगी तब. एंड फॉर दिस पर्सन the karma philosophy does not apply, है ना? And let's just read this. जड़ता के साथ संबंध रहने पर ही करने और ना करने का पक्ष होता है. What is जड़ता? Now we will think जड़ is that which is, you know, non-moving, the table or the table or the chair. ये जड़ वस्तु नहीं, नहीं, सब कुछ ही जड़ है. ये शरीर भी तो जड़ ही है ना? Isn't the शरीर जड़? एक आत्मा होती है, उसको आप निकाल लीजिए, जड़ है, राइट? शरीर तो जड़ ही है ना. चेतन कौन है? उस चेतना को आप निकाल लीजिए, जड़ है. तो फ्रॉम दिस शरीर ऑनवर्ड्स एवरीथिंग जड़ है.
एवरीथिंग जड़ है. ऐसा नहीं कि जो चीज हिलती नहीं है वो जड़ है. ये मेरा शरीर भी जड़ है, इसमें चेतना है ना, वो जड़ नहीं है. उस चेतना को निकाल लो. सब कुछ होते हुए भी लगेगा कि क्या चला गया. सो व्हाट दे आर सेइंग इज, जड़ता के साथ संबंध रहने पर, तो मतलब इस शरीर के साथ संबंध रहने पर, राइट, जड़ता के साथ संबंध रहने पर ही करने और ना करने का पक्ष होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस बॉडी. क्योंकि जड़ता के साथ संबंध बिना कोई क्रिया होती ही नहीं. विदाउट इसी के लिए कहते हैं ना, वी हैव टू डू संबंध विच्छेद. हमें हमारा संबंध तोड़ना है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस बॉडी, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस माइंड, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस थॉट. वी हैव टू से कि दिस इज नॉट मी. ये जड़ है, ये सब जड़ है. तो फिर चेतन कौन है? मैं चेतन हूं. मैं कौन हूं? सच्चिदानंद स्वरूप हूं. एंड आई हैव नो संबंध विद एनी ऑफ दीज थिंग्स, राइट. जैसे शरीर के साथ, शरीर के सभी अंग स्वतः ही शरीर के हित में लगे रहते हैं. नाउ when you are in that state, what happens is they are giving a beautiful example of our body, right? All the different parts of our body are normally naturally helping our body, isn't it? हम ब्रश करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मुंह चबाएगा, डाइजेशन होगा, आंखें देखेंगी. द एंटायर बॉडी इज वर्किंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द बॉडी, हित के लिए, राइट. जैसे शरीर के सभी अंग स्वतः शरीर के हित में लगे रहते हैं, ऐसे ही उस महापुरुष के, कौन सा महापुरुष? हु इज जस्ट बीइंग, सच्चिद आनंद स्वरूप है वो. उस महापुरुष का अपना कहलाने वाला नहीं, ऐसे ही उस महापुरुष अपने कहलाने वाले शरीर, राइट, इस शरीर से स्वतः ही संसार के हित में लगे रहते हैं. It comes naturally to them, just as naturally that taking care of this body comes to every organ of this body. जैसे ही कोई मक्खी बैठेगी, immediately the hand will take it away from our eye, right? Right? If there is, suddenly we are thirsty, suddenly the thirst is here, right? But the hand is going to move to drink some water, right? We want to go to the washroom, suddenly the legs are going to take us. So the entire system is working as one to take care of this body, and this is what happens to this Mahapurush. There is no prayojan. Now why is the leg doing this? उसको पैर को क्या मिलने वाला है? अगर ऐसे पैर सोचने लग जाए, there was a story that we did long back when we were children, that different organs were ridiculing that this is important, that organ is not important. And then there was one organ that said, okay fine, if you think I am the least important, I am not going to use the washroom again. And constipation हो गया. And उसके बाद में क्या हुआ? Then the organs realize that each and every organ is important. So this is a small story we learned as a child. But इनको क्या realization होता है कि we are part of this one big cosmos. Everything is me, everything is mine, everything is one. And when this oneness is established without any desire to get anything in return, the action starts happening automatically, selflessly, just like a body effortlessly works as a team. This Mahapurush operates in this world. वो चुप नहीं रहते, राइट? उसका हेतु बताते हुए भगवान ने इस श्लोक में उस महापुरुष के लिए 3 बातें कही हैं, राइट? इन दिस श्लोक दैट वी हैव डन, श्लोक नंबर 18, व्हाट डज ही से? कर्म करने से उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता. फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ रिविजन. कर्म करने से उसका कोई प्रयोजन नहीं है, दिस महापुरुष. सेकेंड, कर्म ना करने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं है. आई एम नॉट डूइंग, आई एम रिफ्रेन, आई एम ट्राइंग नॉट टू बी इन बैड कंपनी. प्रयोजन है सो दैट आई डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड. पर उनको कुछ ऐसा प्रयोजन नहीं है. वो अगर वहां किसी के साथ बैठे हैं तो भी ठीक है, नहीं बैठे हैं तो भी ठीक है. एंड द थर्ड पॉइंट इज, किसी भी प्राणी और पदार्थ से उसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं है, राइट? नहीं रहता. अर्थात कुछ पाने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं है. सो इन डूइंग देयर इज नो रीजन, इन नॉट डूइंग देयर इज नो रीजन, एंड देयर इज नो सेल्फिश रिलेशनशिप विथ एनीबडी. कहते हैं ना, हमें लगता है कि मदर्स रिलेशनशिप इज द मोस्ट सेल्फलेस रिलेशनशिप.
बट हमने संस्कृत में पढ़ा था जब छोटे थे ना, कि हम माँ भी हमें इसके लिए प्यार करती है क्योंकि हम उनके पुत्र हैं या उनकी पुत्री हैं. यही सेम बरखा, सेम शरीर, सेम मैनरिज्म, सेम एटीट्यूड इफ वुड हैव बीन समबडी एल्सेस डॉटर, क्या मेरी माँ मुझे इतना प्यार करती? नहीं करती. ये भी स्वार्थ का रिश्ता है. सो जो सबसे अल्टीमेट जो रिश्ता है वो माँ और बच्चे का, वो भी स्वार्थ का है. तो फिर सो देयर इज नो सेल्फिश रिलेशनशिप लेफ्ट. देयर इज नो किसी भी प्राणी और पदार्थ. I take care of my house so well because it is my house. I take care of my things. I take care of my car. किसी और की गाड़ी गंदी हो रही तो मैं जाके थोड़ी साफ करूंगी. वो मेरी गाड़ी थोड़ी है. It's not my problem. That is how we operate, right? स्वार्थ है. चीजों में भी स्वार्थ है. We are doing so much for our children. There is no credit that we should get because वो स्वार्थ है. सब स्वार्थ है. And this महापुरुष, करने से नो प्रयोजन, ना करने से नो प्रयोजन, एंड देयर इज नो स्वार्थ का रिलेशनशिप विद एनीबडी, बी इट हिज ओन चिल्ड्रन. दे रिमेंबर, ठीक है, एवरीबडी इज इन देयर ओन जर्नी. आई हैव बीन पुट इन दिस प्लेस, इन दिस सिचुएशन टू लर्न समथिंग. आई हैव टू डू माई ड्यूटी. ओके, आई विल डू इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी. बी इट माई चाइल्ड और समबडी एल्सेस चाइल्ड, द लव इज गोइंग टू बी द सेम. द एफर्ट इज गोइंग टू बी द सेम. And then this person is liberated. जब तक मनुष्य में करने का राग है, right? करने में भी हमारा राग होता है. What is राग? That desire, attachment. And this is a punchline. With this, I think we can end. जब तक मनुष्य में करने का राग है, राग इज होता है ना, डिजायर, अटैचमेंट. मेरे में राग है, कहते हैं ना हम लोग द्वेष से नहीं मरेंगे. कई लोग होते हैं, they won't die out of hatred. They would die out of their utmost extreme attachment. Next verse is going to tell us कि कर्म करो without attachment. So attachment, and it is a very beautiful verse. But जब तक मनुष्य में करने का राग है, राग, I want to do something, you know, there is, even for that action there is rag. Even like होता ना कि oh my God, I love doing my sessions. I just can't live without my sessions. ये राग है. इसीलिए गुरु ने कहा था ना, बहुत पहले मुझसे किसी ने पूछा था, बहुत सालों पहले, कि do you enjoy doing your sessions? I said, yes, I enjoy them. I love them. I can't live without them. She kept asking me this question. And then when I sat in the class, I realized, she said, it is not for your enjoyment. Otherwise, it becomes another form of fulfillment of desires. The answer should be, is it connecting you? तो एक समय ऐसा आना चाहिए कि ग्रंथ है तो भी बहुत अच्छा, ग्रंथ नहीं है तो भी बहुत अच्छा. Right? That is that ultimate. तो राग, that attachment to scriptures भी नहीं होना चाहिए. That attachment to doing something भी नहीं होना चाहिए. पाने की इच्छा. Second है to get something, desire to get something out of something. And then जीने की आशा. होता है ना, oh my God, I want to live. Like sometimes I say, I want to live to be 500. वो भी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, आज का दिन अपना, कल एक सपना. होगा तो बहुत अच्छा, उठेंगे, कार्य करेंगे. नहीं होगा तो जय राम जी की. इस स्थिति में हम कभी सोते हैं कि नहीं? हम सोते हैं भगवान थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अनदर डे. ठीक है, पर मैं तो कई बार कहती हूँ ना कि इतने साल जी लिए, क्या उखाड़ लिया हमने. और मरने का भय भी नहीं होता. मस्त एकदम. ऐसे क्या होते हैं ना, ऐसे फकीरों को देखो, कुछ करने का राग नहीं. करा तो ठीक, नहीं करा तो ठीक, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, कोई इच्छा नहीं. आज जीवित है तो बहुत अच्छी बात है, कल मर गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. कैन वी लिव इन दिस स्टेट? तब तक उस पर कर्तव्य का दायित्व रहता है. तो अगर इफ वी आर नॉट इन दैट स्टेट, which verses 17 and 18 are talking about, कि हम बोलते हैं ना, नहीं नहीं, if we are in that state we do not have to do any karma. Yes, if you are in that state you don't have to do any karma, but if you are not in this state, then कर्तव्य का दायित्व रहता है. You are responsible, please work responsibly. You cannot be free of karma. And then किंतु परम शांति, see, and then the Lord says, and it is very beautiful, you know, if we understand this. In the end, पर राम सुखदास जी कहते हैं, संसार के, है ना, सर्वपरि पदार्थ, पद आदि, you know, whatever we get in this world, think of it, whether it is designation, whether it is people's attention, whether it is things आदि, सबको समान रूप से मिलना संभव नहीं है.
And let's understand one thing, right? Whatever is being given in this world, we won't all get it equally, right? हमारी जर्नी है, somebody will have more, somebody will have less, somebody will have family, somebody won't have family. किसी ना किसी के पास में कोई ना कोई अभाव होगा, किसी को कुछ मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा, राइट? एंड दैट इज द नियम ऑफ संसार. वाई कहते हैं ना, एक डाली में फूल खिले, एक डाली में काटे, कोई कारण होगा. तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो तो बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा. पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर. ये प्रभु की है कारीगरी, तू क्यों है गंभीर? अरे कोई कारण होगा, राइट? तो दिस विल नेवर बी इक्वल, कोई कारण होगा. बट वन थिंग दैट ही इज गारंटीइंग अस इज, किंतु परम शांति सबको समान रूप से ही मिलती है. बट जब वी डिसाइड कि हमें बाकी सब तो छोड़ो, मुझे शांति चाहिए, आई वॉन्ट कंटेंटमेंट, आई वॉन्ट टू बी एस्टैब्लिश इन माई सच्चिदानंद स्वरूप, फॉर दैट देर इज नो डिफरेंशिएशन. एवरीबडी विल गेट इट इक्वली. ये एक गारंटी है. बाकी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, पर जब आप परम शांति की तरफ बढ़ेंगे ना, वो सबको बराबर मिलती है, राइट? उसमें कोई भेदभाव नहीं है प्रभु के घर में. सो ब्यूटिफुल. एंड दिस डिवाइन अवस्था of this kind of a Mahapurush gives him the liberty to be the way he wants to be. So verse 17 and 18 are about this Mahapurush on whom the Karma philosophy does not apply. And then we realize कि भाई हम तो वो महापुरुष है नहीं अभी. तो then he says in the next verse we are going to take, he said कोई बात नहीं. प्रभु says don't worry अर्जुन, समझ आ गया ना कि आप वो महापुरुष नहीं हो, तो सुनो अब आगे वापस बात. Let's go back to the Karma philosophy. So now when you do action, how do you do action? Without attachment. Verse number 19 is going to talk about attachment. And it is going to tell us that there are two things. एक love होता है और एक attachment होता है. They are not interchangeable. Love and attachment are different things. And how do you act in this world? Of course, love has to be there. But no attachment, please. And that is what verse number 19 is going to teach us. We'll just open it and we'll close the class. इसलिए निरंतर आसक्ति रहित कर्तव्य कर्म भली भांति आचरण कर, आसक्ति रहित कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है. So let us, he is consoling us. So listen, even if you're not in that avastha, which verse 17 and 18 are talking about, not to worry. If you are able to act in this world mindfully without any attachment, आपको वो शांति, आपको वो संतुष्टि आपको मिल सकती है. प्रभुता नहीं मिले कोई बात नहीं, प्रभु आपको मिल सकते हैं. So verse number 19 is going to talk about attachment, and the beauty is Ram Sukdas ji has taken around just for this one verse 1, 2, 3, 4, almost 4 pages of fine print, because attachment is something which we are very, very confused about, and it is very difficult to free ourselves from. Right? So in the next class, we are going to go to verse number 19. Jai Shri Ram, Jai Shri Krishna, Jai Hanuman, Jai Hanuman, Jai Hanuman.